Hello dear children, we are learning a snake charmer story today. I am starting from Aryanath. I can do something special which I am sure none of you can do. Do you know what? I can play the bean. You must be surprised. Yes, I can make the snake dance by playing the beans. I have learned this art from my family members. We people are known as Kalbelias. बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि हमें बीन बजाना आता है और हम बीन बजाकर स्नेक को डांस करा सकते हैं और हम लोगों को कालबेलियाज कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कालबेलियाज किन्हें कहते हैं? द पीपल हु मेक द स्नेक्स डांस बाई प्लेइंग द बीन आर नोन एज कालबेलियाज। माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंगस्ट आवर पीपल. He would easily catch many poisonous snakes. He tells me many stories about his past. Come, listen to this story in his own words. Now, dear children, we are learning here the story which is told by the Dadaji. From the time of my grandfather and great-grandfather, we have always been saperas. Saperas means snake charmers. तो यहाँ पर स्नेक चार्मर्स मतलब है सपेरा, अर्थात जो व्यक्ति सपेरा अर्थात सांप का खेल दिखाकर अपनी कमाई करता है उसे सपेरा या स्नेक चार्मर बोलते हैं. स्नेक्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज, कैरी आवर snakes in bamboo baskets. Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. We would then take out our snakes from our baskets. Even after the show, the people would stay on. They knew that in our tin box there were many types of medicine for them. We made these medicine from plants collected from the forest. I had learned all this from my grandfather. I felt nice that I could help people by medicine even if doctors and hospitals were far off. In return, people would give us some money or food grains. In this way, we could manage our life. सपेरे की लाइफ किस प्रकार की होती थी यह बताया हुआ है कि जो व्यक्ति सांप का खेल दिखाकर बीन बजाकर सांप को डांस करवा के खेल दिखाता है वह गांव से गांव भटकता रहता है और वहां पर बहुत सारे व्यक्ति भीड़ बना के साथ में खड़े हो जाते हैं और जब खेल खत्म हो जाता है तो तत्पश्चात वे व्यक्ति या तो पैसा या फिर अनाज देकर उन लोगों की अर्थात सपेरों की हेल्प करते हैं जिससे सपेरा अपना जीवन यापन करता है. Sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake. कई बार मुझे उस जगह बुलाया जाता था जहाँ पर लोगों को या किसी व्यक्ति को स्नेक द्वारा काट लिया गया होता था. From the marks of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. और मैं यह पता लगा लेता था उस बाइट से कि किस सांप ने उसे काटा है. I would then give a medicine for that. तब मैं उन्हें दवाई दे देता था. But I have not always been on time to help. परंतु मैं हर समय पे नहीं पहुंच पाता था. क्यों? As you know, some snake bites can even cause death on the spot. क्योंकि कई सांप ऐसे होते हैं जिनके काटने के तुरंत बाद ही व्यक्ति मर जाता है. But most of the snakes are not poisonous. परंतु अधिकतर सांप जहरीले नहीं होते हैं. Sometimes when some farmers would come running for help shouting, "Snake, snake," I would catch the snake. After all, catching snake was something I had been doing since my childhood. क्योंकि मैं बचपन से पकड़ लेता था सांपों को, इसलिए जब कोई किसान बोलता कि सांप है तो मैं उसे भी पकड़ लेता था. Oh, those were the good days. वो दिन अच्छे थे. We could help a lot of people in many ways. We also entertained them. It was not only today when everyone watches TV for entertainment. आजकल की तरह नहीं है कि केवल बच्चे टीवी ही देखते हैं मनोरंजन के लिए. हम तो सांप भी पकड़ लेते थे और लोगों की हेल्प करके पूरा दिन अपना मनोरंजन से बिताते थे. When I grew older, जब मैं बड़ा हुआ, my father taught me how to remove their poisonous teeth. सांप के poisonous teeth को fangs कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे. He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. सपेराज सांपों के मुंह में पाए जाने वाली पॉइजन की ट्यूब को बांध देते हैं या उसे रिमूव कर देते हैं जिससे कि उन्हें नुकसान नहीं हो या फिर सांप के काटने से कोई जहर ना फैले.
तो इस प्रकार से वो सांपों को जहर होते हुए भी बिना जहर का बना सकते हैं। आर्यनाथ, योर फादर यूज्ड टू ट्रेवल विद मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बींग टॉट। उन्होंने कभी बीन बजाना सीखा नहीं, परंतु फिर भी उन्हें बीन बजानी आती थी। These days it is difficult. आजकल यह मुश्किल है। Now the government has made a law that no one can catch wild animals. आजकल कोई भी जंगली जीव को नहीं पकड़ सकता है and keep them, और उन्हें रख भी नहीं सकता। Some people kill the animals and sell their skins at high prices. आजकल लोग एनिमल्स को मारते हैं और उसे ऊंचे दामों पर बेचते हैं, तो इसलिए लॉ बनाए गए हैं अगेंस्ट देम। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लिवलीहुड। हम अब कैसे कमाएं? तो अब बता रहा है कि यदि हम सांप का खेल नहीं दिखा सकते तो हमें कैसे कमाना है। तो ये बता रहा है कि हमने ऐसा कभी किया नहीं था। वी हैव नेवर किल्ड स्नेक्स एंड सोल्ड देयर स्किन। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशन। हम ऐसा रखते हैं, परंतु ऐसा कभी नहीं था। इफ़ वी वॉन्टेड वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाई किलिंग स्नेक्स। हम भी ऐसा कर सकते थे, उन्हें मार कर खूब सारा पैसा कमा सकते थे, बट वी नेवर डू दैट। हमने ऐसा कभी नहीं किया। स्नेक्स आर अ ट्रेजर। स्नेक्स सांप हमारे खजाना हैं। दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जिसे हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दे देते हैं। वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आवर डॉटर्स। हम अपनी बेटियों को भी गिफ्ट में देते हैं ताकि आगे जाकर वो शादी के बाद भी उन सांपों की सहायता से कुछ कमा सके। In our Kalbelia dance, we also have movements similar to the dance of the snakes. कालबेलिया डांस के अंदर उसी तरह के मूवमेंट होते हैं जैसे कि एक सांप के डांस में होते हैं। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए एक अलग जीवन जीना होगा। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन। आपको बीन तो गिफ्ट मिला है प्ले करने का, परंतु क्योंकि अब सांप नहीं पकड़ सकते तो आप क्या करेंगे। यू एंड योर कजिन कैन फॉर्म ए बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। आप और आपके जो चचेरे भाई बहन हैं वो बीन बजाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं। शेयर योर नॉलेज अबाउट द स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन एंड सिटीज़। जो लोग शहरों और कस्बों में होते हैं, जिन्हें गाँवों का कुछ नहीं पता होता, उनसे आप इनकी बारे में ज्ञान बांट सकते हैं। टेल देम that they should not be scared of snakes. Help them to recognize poisonous snake. किस तरह से स्नेक्स को हम पहचान सकते हैं ये भी आप सीख सकते हैं। यदि किसी स्नेक के ऊपर बने हुए हेक्सागोनल जो बॉक्सेस होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं तो वह कम जहरीला होता है, और यदि वो बॉक्सेस छोटे छोटे और गहरे होते हैं तो वो स्नेक ज़्यादा जहरीला पाया जाता है। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। अब कहते हैं कि आप सिटी और जो टाउन के लोग हैं उन्हें बताइए कि किस तरह से सांप फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। कि जो सांप है वो ईट द रैट्स इन द फील्ड्स, अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स। सांप हमारे मित्र होते हैं क्योंकि, या फिर वो किसानों के मित्र होते हैं क्योंकि वो जो खेत है उनके अंदर पाए जाने वाले चूहों को खा जाते हैं। अदरवाइज खेत में जो चूहे होते हैं वो पूरी फसल को भी नष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है आपका वो ख़त्म होता है। आप सभी इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें बनने वाले प्रश्न उत्तर जो हैं वो मैं सेंड कर दूंगी। सो यू हैव टू कंप्लीट दोज क्वेश्चन आंसर्स विद आवर गाइडेंस। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।